ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جو وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین اور اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور انور سرور کونین کو جہاں کو جہالت کے اندھیروں سے خاتمے کے لیے بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے بہترین نمونہ بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں مسلمان بھرپور انداز میں جشن مناتے ہیں اور اس مہینے کو جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ ویسے تو میلاد النبی اور محفل نعت کا انعقاد کا سلسلہ پورا سال جاری رہتا ہے، لیکن ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہوار کو شان انداز میں اور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ مساجد، گھروں، گلیوں، محلوں، چوراہوں، گلی کوچوں کو برقی کمکموں سے سجا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں بھرپور چراغاں کرتے ہیں، اور میلاد النبی کی محافل بھی سجائی جاتی ہیں، جس میں شریک علماء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، سیرت مبارکہ اور سیرت ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، جبکہ ثنا خواں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت کے نذرانے اور درالسلام کے جو نذرانے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جشن کا سماں ہے۔ شہر میں جا بجا جو ہے وہ محفل میلاد جو ہے وہ سجائی جا رہی ہیں، محفل نعت سجائی جا رہی ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا انداز ہے وہ والہانہ ہے۔ کسی نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے، کسی نے اپنے دفتر کو سجایا ہوا ہے، تو کسی نے اپنی گلی کو سجایا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کیا سماں ہے، علماء اکرام کا کیا کہنا ہے جشن عید میلاد النبی کا جو مہینہ ہے، اس مہینے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم علماء اکرام کی زبانی جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاص تیاریاں ہوتی ہیں اس ماہ کے مناسبت سے، وہ بھی ہم ان کی زبانی آج جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حیدرآباد میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا بھی انعقاد جاری ہے، اس کے علاوہ جو گلہائے عقیدت کے نذرانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین علامہ فاروق سعیدی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ حضرت یہ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے، ذات طیبہ ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس ماہ مقدس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ پر مجھے اس چینل پر، اب تک چینل پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ فرق یہ ہے انہوں نے رحمت کو قبول نہیں کیا اور ہم نے کلمہ پڑھا اور سرکار کی امت اجابت میں آ گئے۔ آپ کی سیرت طیبہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، حکمرانوں کے لیے، محکوموں کے لیے، تاجروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، حاکموں کے لیے، محکوموں کے لیے۔ آپ کا فرمان، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ دنیا اسلامیان عالم سرکار کا 1500 سالہ جشن میلاد منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سیرت رسول کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ جو نظارہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ انجمن شہدائیان رسول کی طرف سے
64वें सालाना 12 रोज़ा जश्न मिलाद का ये इज्तिमा है। अल्लाह करीम इसके सदके हमारी दीनी और दुनियावी मुश्किलें आसान फरमाए और पाकिस्तान को सलामत बाकरामत ता क़यामत रखे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासादत हुई, एक तो उसमें ये मौज़ा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा गया कि अरब में जो जहालत थी, जहालत के अंधेरों का खात्मा हो, बुत परस्ती उरूज पर थी, शिर्क किया जाता था, उन तमाम का खात्मा हो। और क्या क्या मौज़ात है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद जो रोनमा हो गए? देखें, पहली बात तो यह है कि वो अरब इतने सरकश थे कि अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे और ज़मीन में गाड़ देते थे। आपने आते ही बच्ची का मकाम बुलंद किया और बताया कि ये ज़हमत नहीं है, रहमत है। आपकी आमद से कुफ्र का, शिर्क का, सूद का, कत्ल का, गारत का और बिरादर कुशी का और दुख्तर कुशी का खात्मा हुआ और आपके आने से इनकलाब अजीम बर्पा हुआ कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया कि वो जो शुतरबान थे ना, ऊंट चराने वाले, वो दुनिया भर के हुक्मरान बन गए और वो अरब जिनको जाहिल समझा जाता था वो दुनिया के नुक्तावर, नुक्तादान और दानश्वर बन गए और उन्होंने कायनात को सबक दिया। अब अरब अपने सिवा पूरी दुनिया को अजम यानी गुंगा कहते हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद एहसान अजीम है और हमें उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए महाफिल, जलसे, जुलूस, इजहार तशक्कुर, चरागा ये सब करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मोहब्बत रसूल के साथ इताअत रसूल को भी लाजिम पकड़ना चाहिए। यूँ तो साला साल सरकार दो जहाँ का विर्द बुलंद होता रहता है, नात ख्वां गुलहा किधर के नजराने भरपूर अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल में खुशी का समा ही अलग होता है। इस पर कुछ बताएं हमें। वो वजह ये है कि लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ। कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ, मगर लैलतुल क़द्र हर साल आती है और हर साल जश्न नुज़ूल कुरान मनाया जाता है। तो सरकार की विलादत तो हुई रबीउल अव्वल की 12वीं को सूबे सादिक के वक्त, लेकिन वो जश्न हर साल मनाया जाता है। वही अनवार, वही बरक़ात, वही तजल्लियात, वही हसनात और वही नूर देखने में आता है कि जब सरकार की विलादत हुई तो पूरी कायनात ने खुशी मनाई। बैतुल्लाह भी खुश था कि उसको बुतों से पाक करने वाला रसूल तशरीफ़ लाया। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी कहते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। ये मुजरे को झुका के मानिए अदब से सलाम करना। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। तो ये एक फितरी चीज़ है और एक कलमा पढ़ने वाले को अपने पैगंबर की ज़ात से मोहब्बत होना ये फितरत का तकाजा है। नबी आखिरी सवाल है मेरा, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं इस फितना दौर में हम किस तरह से उनकी तालीमात को अपने लिए मिशल राह बनाकर आखिरत और दुनिया और आखिरत के लिए आसानी का बाइस बना? देखिए, कुरान करीम जो है ना वो सीरत नबवी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुल कुरान, कि पूरा कुरान मेरे ताजदार का खुल्क है। कुरान पढ़ें, सीरत तैयबा का मुताला करें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम चलता फिरता कुरान है और कुरान सीरत नबवी की अमली तस्वीर है। हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। इस तरह हमारी दीनी और दुनियावी मुश्किलात हल हो सकती है। आपने मारूफ आलिम दीन अल्लामा फारूक सईदी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इनका कहना है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है, उनकी जो सीरत मुबारक है, उसको हम इस मौजूदा दौर में अगर उस पर अमल दरामद करें, उनकी तालीमात पर अमल दरामद करें तो अपने लिए दुनिया और आखिरत के लिए न सिर्फ आसानी पैदा की जा सकती है बल्कि जो हमें दुनियावी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनसे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादर के मुकद्दस माह में हैदराबाद शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। गली मोहल्लों, मसाजिद, चौराहों और जगह जगह जो है महफिल मिलाद का भी इनकाद
किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो सीरतुन्नबी, सीरतुल-मुस्तफ़ा और ख़ातमुन-नबीय्यीन के उन्वान से जो है वो कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद किया जा रहा है और गुलहाए अक़ीदत के नजराने पेश करके जो नात ख्वाह हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, शान अक़दस में जो है वो सलाम भी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ आशिकाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हज़रत क्या कहेंगे आप, कितने साल से आप यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल जो चौक है, मारूफ चौक है हैदराबाद का, यहाँ पर महफ़िल मिलाद, मिलादुन्नबी और उसके अलावा महफ़िल जो नात है उनकी महफ़िल सजाते हुए चले आ रहे हैं और इस वक्त भी माशाल्लाह यहाँ पर एक रूहानी प्रोग्राम चल रहा है। हर जानिब लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएँ हैं और बरक़ी गुमगुमे की चमक है। पूरा हैदराबाद इस तरह से चमक रहा है जैसे दिन का समा हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 64वां साल है, 13 रोज़ा जलसा ईद मिलाद नबी जारी और सारी है। आज 10वां इसका प्रोग्राम, जिसमें अल्लामा मौलाना हाफिज़ फ़ारूक ख़ान सईदी दामत बरकातुहु आली मुल्तान से तशरीफ़ लाए थे। वो अपनी तकरीर करके आपके सामने रवाना हुए। अल्लामा मौलाना मक़बूल अख्तर क़ादिर दामत बरकातुहु आली तकरीर फरमा रहे हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से क्या बल्कि पूरी दुनिया से, इंडिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से उलमा हज़रात तशरीफ़ लाते रहे और हमारे ज़ंगालुद क़ुलूब को मुनव्वर करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आज बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद नहीं हैं। ग़ज़ाली ज़मा अल्लामा मौलाना अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा शाह फरीदुल हक़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा मुस्तफ़ा अल अज़हरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना कौसर न्याज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो यहाँ अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार न्याज़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हामिद सईद काज़मी साहब रहमतुल्लाह दामत बरकातुहु आली, अल्लामा अरशद काज़मी रहमतुल्लाह ताला और दामन बरकातुहु आली वो तशरीफ़ लाते रहे और हमारे ज़ंगालुद क़ुलूब को मुनव्वर करते रहे। और इसमें नात खानी में भी वही ज़फ़र काज़मी, हाफिज़ मुस्तक़ीम मरहूम और दीगर मशहूर मारूफ नात खां तशरीफ़ लाते रहे और अपना हदिया नात हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करते रहे। अच्छा, कितने सालों से ये सिलसिला जारी है और एक रूह परवर मंजर होता है जब उलमा इकराम यहाँ पर आते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ज़ात मुबारका और जो सीरत तैयबा है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर जब रोशनी डालते हैं, क्या मंजर होता है यहाँ पर? देखिए, अल्लाह ताला ने कहा ना कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब मैंने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। हम तो वो सुन्नत अदा कर रहे जो मेरे महबूब के लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे। यहाँ एक हिंदू आए थे, उन्होंने ये बाकायदा शिकायत की थी कि आप लोगों ने उनको कैद कर दिया, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं रहमतुल लिल आलमीन है, सबके लिए है। जो ईमान लाया उसके लिए तो क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 64वां साल है, 13 रोज़ा जश्न ईद मिलाद नबी मनाया जा रहा, क्योंकि हम अंग्रेज़ी तारीख से जलसे को शुरू करते हैं। 25 अगस्त से ये जलसा जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां रोज़ है, हफ्ते के दिन 13वां हमारा जलसा होगा और गवर्नमेंट की तरफ से 12वां रोज़ होगा। अच्छा, जो चिरागा किया जाता है, कितना ज़रूरी है ये चिरागा सरकार के आमद की खुशी में? देखें, मेरे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे और ये जो नूरी कुमकुमे हैं ये लाजमी हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमारा रबीउल अव्वल चौक से लेकर दोनों साइड माशाल्लाह से लोगों ने सजाए हुए हैं और ये सजाना नहीं है, इन्होंने अपने कब्रों में रोशनी की हुई है, नूर फैलाया हुआ है। और जो लोग यहाँ सुनते हैं, आते हैं और जो दुनिया में से चले जाते हैं, उनके इंशाल्लाह कब्रों में नूर ही नूर होगा। और क्यों ना हो नूर, अल्लाह ताला ने खुद कहा ना कि मैंने अपने नूर से मेरे महबूब को पैदा फरमाया। आप बताइएगा, आपकी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या खुसूसी तैयारियाँ होती हैं? बच्चों का जोश और जज्बा क्या होता है? ख़वातीन जो घरों में महफिल मिलाद सजाती हैं, उनका क्या जोश और जज्बा होता है? और आप क्या तैयारियाँ करते हैं खुसूसन इस महीने के मुनासिबत से? हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जो है रबीउल अव्वल शरीफ जब आता है तो लोगों का जोश दीदनी होता है, मगर इस साल कुछ खसूसियत ये है कि 1500 साल जश्न विलादत है और लोगों का जोश और जज्बा पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है। जगह ब जगह जो है घरों के अंदर जो है महफिल नात और महफिल ज़िक्र का सिलसिला है, जिसमें ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों महफिल जो है मुनक़िद हो रही हैं। और बिलख़ुसूस इंतज़ामिया हैदराबाद जो है उसके हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो अंजुमन शदाइन रसूल के तमाम
جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور ہمارے کو جو ہے اس کے اندر جو ان سے ہو سکتا ہے اس کے اندر اپنے جو ہے کاوشوں کے شامل کرتا ہے۔ حضور سے کیا تیاریاں کرتے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن مناتے ہیں، گھروں میں کیک کاٹتے ہیں، گھروں میں بھی چراغاں ہوتا ہے؟ گھروں میں جگہ با جگہ جو ہے ہمارے نیازوں کا، لنگروں کا اور غریب غربا میں جو ہے کپڑوں کی تقسیم کا، ان کے راشن کی تقسیم کا یہ سلسلہ ایک بہت بڑی تعداد میں پچھلے سالوں میں علماء کرام نے جو ترغیبیں دی ہیں اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں، اور اس بالخصوص جو ہے ان 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پہ بہت سارے غریب خاندانوں میں لوگ راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی کیا ہوئے ہیں۔ بالخصوص سیلاب زدگان کے لیے لوگ جو ہے خصوصی جو ہے امداد کے پیکیجز نکال رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے گفتگو سے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ اس وقت ملک میں جو ہے وہ سیلاب برپا ہے، سیلاب ہر جانب تباہی مچا رہا ہے۔ 1500 سال بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، تو اس جشن کی خوشیوں میں ہم ان سیلاب زدگان کو بھی یاد رکھیں جن کے گھر ڈوب گئے، جن کی جمع پونجی ڈوب گئی، جن کے مال مویشی سیلابی پانی بہا لے گیا، جن کے گھر تباہ ہو گئے، انہیں یاد رکھیں، ان کی بھی مدد کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ہم دوسری کی تکلیف محسوس کریں، دوسرے کا درد محسوس کریں۔ تو بڑی اچھی گفتگو، ہم ان سے بھی جانیں گے۔ حضرت آپ بتائیے گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یوں تو پورا سال ہی منائیں تو بھی دن کم پڑ جاتے ہیں، 365 دن، لیکن جو یہ 12 دن ہوتے ہیں، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، ان میں جو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی محافل سجائی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کی محافل سجائی جاتی ہیں، ورد کیے جاتے ہیں، گلہائے عقیدت کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو بیان کیا جاتا ہے، اس پر تھوڑا بتائیے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا، یہ 64واں سال کا عرس ہے، جو جلسہ ہے۔ محبوب الہی صاحب نے محبوب عالم صاحب نے پوری تفصیل آپ کو بیان کر دی ہے کہ کون کون سے علماء آتے تھے اور کس طرح سے ان کی خدمات کی ہے۔ میں تو آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالتا ہو۔ ضرور نہیں ہے کوئی کہ آدمی چندے سے کرے یا ویسے کرے، دل سے محبت سے غریب غربا، یہ محبوب صاحب نے یہاں پر ایک منع اہتمام کرتے ہیں۔ ان کو اللہ صحت دے جو یہ اس ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں ہر ایک آدمی اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا یہ جلسہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر، ان کی زندگی کے بارے میں یہاں بیان کیا جاتا ہے، اور ویسے تو ہر سال ہوتا ہے، وہ کم نہیں ہے، لیکن یہ 12 دن کا ایسا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر باہر سے آپ دیکھیں گے یہاں کی روشنی تو دل آپ کا اندر تو آنے کی بات الگ ہے، وہیں سے دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب جلسے میں آتے ہیں تو وہ روحانیت کا منظر وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بتایا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر، ان کے اخلاق پہ، ان کی ایک ایک چیز کی وہ جو بیان کرتے ہیں، لوگ مستفید ہوتے ہیں اس سے، وہ اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے اپنے دل کو تقویت پہنچتی ہے ان کی۔ میں تو اتنا ہی آپ سے عرض کروں گا، ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر و اذکار یہاں پر بلند ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں کی یہاں پر جب گونج ہوتی ہے تو ایک منظر ہی الگ ہوتا ہے۔ کچھ اور بھی ہمارے ساتھ عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں۔ کیا بتائیں گے آپ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کا مہینہ منایا جا رہا ہے، کس طرح سے آپ تیاریاں کرتے ہیں اور کیا منظر ہوتا ہے جب محفل میلاد سجائی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک عبداللطیف انجمن شہدائے رسول استقبالیہ کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ میں اپنے علاقے سے یو سی وائس چیئرمین بھی ہوں، مسجد کمیٹی کا صدر بھی ہوں۔ یہ جلسہ 1961 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ہمارے جو سرپرست بانی ہیں عطیہ احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے یہ پودا لگایا تھا جو کہ آج تناور درد بن گیا ہے۔ 64 سال سے یہ 12 روزہ جشن عید میلاد النبی میں بنایا جاتا ہے، پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک۔ اس میں پورے پاکستان سے بڑے جید عالم تشریف لاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں پبلک کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں ایمان کی روشنی لے کے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنایا جائے گا، آپ کی ولادت بنائی جائے گی،
घर घर गली गली महल्ले महल्ले को सजाया जाएगा, चरागा किया जाएगा, घरों पे झंडे लगाए जाएंगे और ये क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का भी एक इंतज़ाम किया, वो भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत पे तो हमारा ये पक्का ईमान है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो हमारे ख़त्म नबी हैं, वो हमारे नबी हैं, वो आखिरी। तो इस पर हमारा पक्का ईमान है इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज चौथी नस्ल से बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। घरों को भी सजाया जा रहा है, गली मोहल्लों, गली कूचों, बाज़ारों, बुलंद इमारतों, सबको सजाया जा रहा है। इस सजावट, इस चरागाह पर कुछ बताएं हमें। चरागा तो आप देखना ज़रूरी है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी नूरी नूर है यहाँ पर। और खास तौर पर रबी अव्वल चौक पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। आप कहीं भी मालूम कर ले, रबी अव्वल चौक हर कोई बताएगा रबी अव्वल चौक वो जो जलसा मुनक़द किया जाता है 12 दिन का। तो ये तो जलसा इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ की रौनकें भी आपको पता है। फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम नवाजी, क्यों ना इसमें फिर तरक्की होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये शायर कोई नात याद हो आपको, मुख्तसर से सुना दें अगर याद हो कोई नात। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि 12 रबीउल अव्वल जो चौक है हैदराबाद का, पूरी जग में जो है ये चौक जो है वो अपनी अलग एक मुनफरिद पहचान रखता है, क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की मुनासबत से यहाँ पर हर साल गुज़िश्ता 64 साल से यहाँ पर महफिलें सजाई जा रही हैं। जो जंग आलूद दिल लेकर यहाँ पर आते हैं, उनके दिलों में रोशनी जो है वो यहाँ महफिल में शिरकत के बाद जो है वो उजाला हो जाता है और वो रोशन दिलों को लेकर यहाँ से रवाना होते हैं। आप क्या बताएंगे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल सजा की याद, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में यहाँ पर गुज़िश्ता 64 सालों से जो महफिल सजाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? अभी माशाल्लाह जितने भी रफ़क़ा हैं, जो भी आशिक़ान रसूल जो हम लोग अपने आप को कहते हैं, माशाल्लाह उन्होंने तमाम चीज़ें बयान कर दी हैं आपको, जश्न के एतबार से भी और चरागा के एतबार से भी, और ये जो एहतमाम हो रहा है 64-65 साल से। अपने तौर पर बताएं आप क्या तैयारियां करते हैं इस खास महीने की आमद का इंतज़ार, कितना शिद्दत से एक इंतज़ार रहता है आपको, दूसरा जब आता है तो क्या तैयारियां होती हैं? देखें, एक अगर रसूल खुदा से मोहब्बत करने वाला जो भी होगा ना इंसान, किसी भी मज़हब से किसी भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसको वाकई प्यार है तो वो इस दिन का इंतज़ार करेगा। उस साल भर जिनके पास पैसे नहीं होते वो कमेटियाँ डाल के अपने और कुछ अखराजात को कम करके इस महफिल मिलाद का इनाक़ाद छोटे छोटे अपने घरों पे करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी याद से वाबस्ता रहें और जुड़े रहें। ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा हम महफिल मिलाद का एहतमाम हर आदमी नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे घरों में जो महफिल मिलाद होती है ना, मतलब कोई दिया जला ले अपने घर के अंदर, चरागा कर ले, खुद बैठ के उनका यकीन है, एतबार है कि रसूल खुदा हाजिर होते हैं और उनके सलाम का जवाब दिया जाता है। ये ईमान है ना हमारा। तो घर घर जो छोटी छोटी महफिलें होती है ना, इसका बहुत चर्चा है, बहुत मज़ा है इनका। और जाहिर सी बात है वो जब उस घर में रौनक होती होगी, जब रसूल खुदा का उनको यकीन है कि वहाँ पे उनका नज़ूल होता है और वो उनका सलाम का जवाब देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है दिलों को मुनव्वर करता है। उसके साथ साथ हम उनकी तालीमात जो है ना, असल मकसद इनका जश्न का मनाने का ये नहीं कि हम सिर्फ खुशियाँ मना रहे हैं कि वलादत का, उनकी जो सुन्नत हैं जिस पे हमें मन अमन जो अमल करना चाहिए ना, जो उनके तरीक़े का था, जो उनकी शरीयत थी, हम आशिक़ रसूल जब भी बनेंगे जब हम उनके फॉलोअर बन जाए ना। हम खाली जलसे जुलूस से चरागा करने से फॉलो नहीं कहलाएंगे। हम मकसद ही यही है। यहाँ के जो उलमा जो 64-65 साल से जो इतने माशाल्लाह जो आलिम फाजिल मुफ्तियान जो आते हैं ना, उनका मकसद ही यही है कि उनकी तालीमात को हमारे दिलों तक पहुँचाना, और हमारा काम ये है कि हम उन महफिलात में शिरकत करें, शिरकत करके वो फैज़ हासिल करें जो हम किताबों से हासिल नहीं कर सके। आप क्या बताएंगे, आपकी क्या ख़ास तैयारियां होती हैं? घरों में चरागा करते होंगे, महफिल मिलाद भी सजाई जाती है, आपकी क्या तैयारियां होती हैं जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्या आपका अकीदत और जज्बा है? हमारी जो ये 12 रबी अव्वल जो 64वां प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए हम 12 रबी अव्वल से 2 महीने से पहले से हमारी तैयारियां शुरू होती हैं।
जलसा 13 रोज़ा प्रोग्राम होता है। इसके लिए सारे घरों को सजाया जाता है, सारी मस्जिदों को सजाया जाता है। इधर के तामीरात के जो काम है, लाइनों के, सेवरेज के, वाटर सप्लाई के, वो देखे जाते हैं। तो हमारी 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है 13 रोज़ा प्रोग्राम की। तो ये प्रोग्राम जो हमारा 64वां साल का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये तकरीबन पूरे कहीं भी हैदराबाद में 13 रोज़ा प्रोग्राम नहीं होता। सकी अब्दुल शाह जिलानी बाबा का दूसरा ही है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। तो हम यही बोलेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस पर अमल करें, जो उन्होंने बताया सुन्नत के हिसाब से उस पर चलें, और नमाज कायम करें। और हमें जो हमारे जो हक़ राय हक़ उसमें शहीद हो गए उनको भी याद रखें, सैलाब आने वाला है उनको भी याद रखें। और ये अल्लाह इस ईद मिलादुन नबी को आसानी से ये 13 रोज़ा जो प्रोग्राम है हमारा साथ खैरियत से होता है। आप क्या बताएंगे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत के महीने में जश्न मनाना कितना ज़रूरी बन जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आशिकान रसूल को अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी हमारे उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, उन तमाम को जो है विलादत का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस खुशी से मनाना चाहिए कि जैसे हम अपने हर साल सालगिरह मनाते हैं, बच्चों की मनाते हैं, तो हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन क्यों ना मनाएं। उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बनाएं, चरागा करें, रोशनियाँ लगाएं, मस्जिदों में जाएं और आलिमों को सुने कि आलिम हमें तारीख़ क्या बताते हैं, पिछली तारीख़ों में कैसे कैसे लोगों ने किया। यहाँ महबूब शेरवानी साहब जो है 12 रोज़ा 13 रोज़ा प्रोग्राम करते हैं। चाँद देखते ही जो है वो रबीउल अव्वल का उनके प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं और 12 रबीउल अव्वल की रात तक जब तक जुलूस ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, तबरुक बढ़ता रहता है, लंगर चलता रहता है, तमाम चीज़ें महबूब शेरवानी भाई यहाँ पे खुश उसलूबी से करते हैं। अच्छा, यूँ तो सरकार जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में महफिल मिलाद भी सजाई जाती हैं, ज़िक्र अस्कार की महफिलें भी सजाई जाती हैं, लेकिन रबीउल अव्वल में ख़ास जो है वो खुसूसी अक़ीदत व एहतराम बढ़ जाता है हमारा और खुसूसी जश्न मनाया जाता है। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो एक बात थोड़ी वाज़ेह करूं कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि सहाबा के दौर में ये मिलाद नहीं होता था। उस वक्त हर चीज़ सादा थी, कोई फंक्शन कोई इवेंट हर चीज़ सादा थी। तो हमारे नबी का मिलाद सादगी से मनाया जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पीर के दिन रोज़ा रखते थे। अब क्योंकि हर दौर डेवलप हुआ और हर जश्न उसकी बड़ी अरूज पे करता, तो अब हमारे लिए लाजम हो गया कि ये ना हो कि हम अपने बेटे का जश्न तो खूब मनाएं, मिठाइयाँ तकसीम करें, लैंडिंग करें, सब खुशियाँ मनाएं, खाना खिलाएं, लेकिन सरकार का जिसके लिए कायनात जो तकनीकात है अल्लाह ताला ने इसके लिए सब कुछ बनाया, जब उसका यौम होता है हम सारे चीज़ फतवे जारी हो जाते हैं। तो इसलिए हम पे लाजिम है कि हम हर जश्न मनाएं, लेकिन इसको यानी सब हैच नज़र आए और सबसे आला नज़र आए। या तो सब छोड़ दो या सब छोड़ दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक इस्लामी रियासत कायम की। आपने जैसे आज हम 14 अगस्त 13 या 23 मार्च मनाते हैं, क्या हुज़ूर ने मनाया? जब नहीं मनाया, जब वो मनाता उस पर फतवे किसी के जारी नहीं होते, उनके ज़बानें बंद होती हैं। जब सरकार की महफिल का दिन आता तो सारे फतवे शुरू हो जाते। अपने बेटे की खुशी कहते हैं ना, क्यों ना ये ईद मिलादुन नबी में मनाऊं कि दीगर ईदें सारी ईदें ही इस ईद के ये आए तो हमें कुरान मिला, ये आए तो हमें ईमान मिला, ये आए तो हम मुसलमान हुए। कोई हर चीज़ हमें अल्लाह पाक ने नबी के ज़रिए से दी। बगैर नबी के ज़रिए से एक आयत भी नहीं मिली, एक हुक्म भी नहीं मिला। जो भी मिलता है पहले अपने नबी को मबूस फरमाता है और फिर वो हमें अल्लाह का पैगाम देता है और फिर उस पर हम अमल करते हैं। तो नबी आता इसीलिए है कि अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाने के लिए। अगर नबी के बगैर डायरेक्ट भी कोई चीज़ मिल जाए ना, एक हम बात करते हैं डायरेक्ट की, अल्लाह पाक ने लामुताज होकर कोई चीज़ हमें डायरेक्ट नहीं दी। जब भी दी अपने रसूल और अपने नबियों के वसीले से दी है। उसको मबूस फरमाता है, फिर अपना अहकामात उस पर उतारता है, वो हम तक अल्लाह की बात को पहुँचाता है और हम लामुताज होकर हम साथ ज़रूरी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल दरामद का इस फितना दौर में। अल्लाह पाक ने भेजा इसलिए अपने नबी को, उसको मॉडल बना के भेजा कि तुम्हारे लिए नबी मॉडल है। जिस तरह ये
अमल करे, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, कैसे इबादत करता है, उसको हमें फॉलो करना हम पे लाजम है कि हम नबी की एक बात पर अमल करें। और बाकायदा है ही अमल के लिए, जो मेरा नबी जो आया वो हमें जो अहकामात दिए उस पे हम पे लाजम आता है कि हम उस पे अमल करें। आपने मुख्तलिफ जो आशिकान मुस्तफ़ा उलमाए दीन की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल दरामद कर कर ही दुनिया और आखिरत में अपने लिए जो है वो आसानी पैदा की जा सकती है। क्यों ना मैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाऊँ कि तमाम सारी ईदें ही इसी ईद का दिन है। महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही जिन्हें सरकार जो है वो बुलाते हैं। 12 रबीउल अव्वल चौक पर 12 रोज़ा जो है महफिल मिलाद सजाई जाती हैं। यहाँ पर सैयदुल मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया जा रहा है, जहाँ पर शिरकत के लिए आने वाले जो आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो यहाँ पर आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है, सीरत तैयबा है, विलादत बासआदत पर जो उलमाए इकराम जो रोशनी डालते हैं उन्हें सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर और रोशन करके यहाँ से रवाना होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व नूर की ऐसी शम्में रोशन की जिसने इल्म व तहज़ीब से आरी अरब जैसे मुआशरे से जहालत के अंधेरों का ख़ात्मा करके उसे दुनिया का तहज़ीब याफ्ता मुआशरा बनाया और अपनी तालीमात में अमन, भाईचारगी, अखुवत, यकजहती और बर्दाश्त का दर्ज दिया। हम सब के लिए ये लाजिम है कि इस फितना परवर दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने लिए मिशल राह बनाएं। इसी में ही दीन व दुनिया की कामयाबियाँ छुपी हुई हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। अपने मेज़बान साजिद हुसैन आरई को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।